with the chapter 20 that is caste and Indian politics. देखो आपको पता है कि caste has remained a very important aspect of social and political life in India. हमेशा जब से इंडियन कंट्री वजूद में आई है, ठीक है, इट इज़ डीपली रूटेड एंड एंशिएंट फीचर ऑफ द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, आया समझ। क्योंकि आज भी अगर हम देखा जाए, कास्ट इज अ मेजर डिवाइसिव फोर्स जो इफेक्ट करता है नेशनल यूनिटी और नेशनल डेवलपमेंट को। और जो वर्ड कास्ट ना, इसको डिराइव किया गया है पोर्तुगीज वर्ड कास्टा से, मीनिंग ब्रीड, रेस और काइंड ह्यूमन डेबो कास्टा, अ मैन और अ गुड फैमिली, ठीक। द वर्ड वाज फर्स्ट टाइम यूज्ड इन द रेस्ट्रिक्टेड सेंस डेट्स फ्रॉम 1563 when Garcia da Orta wrote that no one changes from his father's trade and all those of the same caste of shoemakers are the same। लाइक है ना, लाइक इट्स पुरानी कहावत है, लाइक नाई का बेटा नाई बनेगा या पॉलिटिशियन का बेटा पॉलिटिशियन बनेगा। तो लाइक इट्स काइंड ऑफ दैट। बट here are some of the different thinkers who've like given their own definition, so you can go through them, ठीक है। जैसे हम रिस्ली का पढ़ते हैं, कास्ट इज अ कलेक्शन ऑफ फैमिलीज और ग्रुप्स ऑफ फैमिलीज बेयरिंग अ कॉमन नेम, ठीक है, कॉमन नेम। कलेक्शन ऑफ फैमिलीज और ग्रुप्स ऑफ फैमिलीज जिनका सिर्फ एक नाम है, ठीक है, कॉमन नेम। क्लेमिंग अ कॉमन डिसेंट, जो सिर्फ एक डिसेंट से आए हैं, फ्रॉम अ माइथिकल mythical ancestor, human or divine, professing to follow the same heredity, calling and or regarded by those who are competent to give an opinion as forming a single homogeneous community। like सब सेम है, ठीक है, इनको लगता है कि हम उस लाइक एंसेस्टर से या उस ह्यूमन से लाइक डिसेंट हुए हैं, लाइक दैट्स व्हाई वी फॉर्म अ सिंगल होमोजेनियस कम्युनिटी। तो आप बाकी डेफिनेशन पढ़ सकते हो, जैसे सिनाट ने बोला है, ब्लंट ने बोला है, और एम एन श्रीवास ने या कार्वे ने बोला है, ठीक है। अब देखो, अकॉर्डिंग टू हिंदू ट्रेडिशन, आपको पता है कास्ट सिस्टम लाइक चार वर्ण होते हैं, ठीक है। जैसे को पता है, ब्राह्मण होते हैं, क्षत्रिय होते हैं, वैश्यास होते हैं, और शायद शूद्रास होते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो देखो, like Brahmins are considered as the top, and Kshatriya who were created from his arms, the Vaishya who was formed his stomach, and Shudra who was born from the feet. So like they believe, like Hindus believe that like Brahman was derived from the mouth of the deity, Kshatriya was carved from his arms, Vaishya from his stomach, and Shudra was born from his feet. The Brahmins were declared to be the chief because of their origin from the mouth. अच्छा, तो Brahmins को क्यों chief बोला जाता है? Why are they like always like put above the hierarchical level? Because they think that they were like they have the belief that वो मुंह से like create हुआ था, जो deity का मुंह था। The Kshatriya was deemed vigorous because they were created from vigor energy. Kshatriya को हमेशा क्यों बोलते हैं, like they are like always known for their like vigor and strength because they were created from arms. Vaishyas were meant to be business because of the creation from the stomach. अच्छा, receptacle of food, क्योंकि like food equals to stomach और stomach means businessman. So the Shudra because of the creation of the food was deemed to be the transporter of others. अच्छा, got it. This is the first time I'm reading it. Oh man, education really opens your eyes. Politicization of caste in the Indian politics. तो कैसे होता है? देखो, the relationship between the caste and politics reveals the politicized nature of caste in the context of Indian politics. कैसे? देखो, caste provides an extensive basis for the organization of democratic politics. The need to organize and articulate support in open polity turns to those engaged in political competition towards organizations and solidarity groups in which the masses are found. Got it? क्योंकि देखो, और ये हमेशा लाइक एक ड्राइव करता पॉलिटिकल प्रोसेस को। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा, रीसेंट इलेक्शन जब हुए, लाइक बहुत सारा पोलराइजेशन हुआ है, लाइक इवन ऑन द रिलीजियस बेसिस पोलराइजेशन हुआ है, बट व्हेन इट कम्स टू कास्ट द पोलराइजेशन इज ह्यूज। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, लाइक व्हाई वाज समाजवादी पार्टी लाइक द लाइक हाईएस्ट नंबर ऑफ लाइक सीट्स क्यों जीते उन्होंने यूपी में? नो डाउट लाइक देयर वाज अ शिफ्ट, क्योंकि लाइक बीजेपी से तंग आई थी लोग और उन्होंने लाइक एक हिसाब से पोलराइजेशन किया था। बट मुझे लगता है लाइक कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स भी बहुत चलता है, क्योंकि लाइक यादव हैव लाइक वोटेड इनरमसली इन सपोर्ट ऑफ समाजवादी पार्टी। So yeah, there is always a caste identity and solidarities like through primary channels which eventually mobilize the political parties, ठीक है। देखो, caste is used more extensively in mobilizing support in rural, क्योंकि देखो आप अर्बन एरिया में आपको पता है लाइक लोग मॉडर्न हुए जाते हैं और लाइक दे डोंट रियली केयर अबाउट कास्ट सिस्टम, दे आर लाइक लिबरल लोग। तो मेजोरिटी ये चीज़ें कहाँ पे ज़्यादा यूज़ होती है एक्सटेंसिवली? रूरल एरियाज में। और पॉलिटिकल पार्टीज बहुत ईजी टूल है इनके लिए, आया समझ। डायरेक्ट करना सीधे लाइक टुवर्ड्स अ कास्ट कम्युनिटी। इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड द कास्ट इज द लिटरेट विल टेक अराउंड मास पार्ट्स विद द मॉडर्न डेमोक्रेट्स। और देखो, कास्ट से आप एक हिसाब से इन्फ्लुएंस कर सकते हो, क्योंकि जो पढ़े लिखे लोग नहीं होते और जो पॉलिटिकली इग्नोरेंट होते हैं, उनको आप कास्ट के बेस पे एक्सप्लॉइट कर सकते हो, और इवेंचुअली वो मॉडर्न डेमोक्रेटिक प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं, वोट करते हैं आपके लिए। उनको बस दो चार मीठी बातें बोलो कि हम ये है हम वो है, बस उस नाम पे थोड़ा बहुत एक्सप्लॉइट करो, एंड देन वो आपके गुलाम बन जाएंगे। The communication of ideas is strong within a caste, and generally the members of caste share the same views in relation to political parties, politics, and individuals. जैसे देखो हम जैसे हम हरियाणा की बात करते हैं, लाइक जाट की बात करें, लाइक जाट्स कॉन्स्टिट्यूट ऑलमोस्ट लाइक 60% ऑफ द होल ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा। एंड इफ वी टेक द सिनारियो लाइक अभी का, मुझे लगता है लाइक दे आर मोस्टली इंक्लाइन टुवर्ड्स कांग्रेस, और मुझे लगता है लाइक ओनली बिकॉज ऑफ जाट्स कांग्रेस विल कम इनटू पावर आई गेस इन अक्टूबर इन हरियाणा, लाइक बिकॉज दे शेयर द सेम व्यूज। ये नहीं कि लाइक हाँ लाइक 99.99% तो ऑलमोस्ट लाइक
like same होता है caste का, because they eventually like have a homogeneous, like they have a strong ideas of communication within their own community, ठीक है। देखो उसके बाद देखो कास्ट एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, the caste system in Indian society is based on Varna system, which classifies into four divisions. क्या क्या? Brahman, Kshatriya, Vaishya, and Shudra. But this Varna system cannot be understood easily by the people, so it can be understood from the angle of Jati. The Jati has a definite geographical and even linguistic limitation. अच्छा, जति का एक definite geographical और even linguistic limitation होता है, ठीक है। The Jati provides a person his social identity, security, duty and responsibility, ठीक है। In this Jati system or caste system, which makes the Hindu religion a rigid social order, consists of clans. तो इस हिंदू रिलीजन में एक रिजिड सिस्टम होता है, फ्लेक्सिबल नहीं होता है, मतलब ये कभी बदलेगा नहीं। तो इसमें सोशल ऑर्डर कैसे बनता है? क्लैंस के हिसाब से बनता है। तो ईच जो हर कोई कास्ट होता है इसका डेफिनेट प्लेस होता है एक सोशल हायरार्की में, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कास्ट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, द फ्रेमर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ट्राई टू इरेडिकेट सम ऑफ द इविल्स ऑफ द कास्ट बाय एबॉलिशिंग द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, लेकिन कुछ हुआ नहीं उससे। मुझे लगता है अभी भी जो बहुत ट्राइबल एरियाज है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और बाकी जगह, वहाँ पे अभी भी अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस होती है और बहुत वाइड स्केल पे प्रैक्टिस होती है, ठीक है। In this way, Constitution recognizes the state system and provides reservation of seats for the scheduled caste and scheduled tribes in the Union Parliament and state legislation. इसलिए इनके लिए रिजर्वेशन दी जाती है जो scheduled caste और scheduled tribes से belong करते हैं। It also provides for the office of the Commissioner of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Also, like Commissioner of Scheduled, like एक अलग like डिपार्टमेंट के लिए क्रिएट किया गया है, ठीक है। Moreover, the reservation in the matter of education, और education और जॉब में भी रिजर्वेशन है, आपको जैसे पता होगा। Moreover, the reservation is also extended to the other backward classes identified the मंडल कमीशन। देखो, मंडल कमीशन बिठाया था शायद 19, मुझे लगता है हाँ 19 लेट 80s में, हाँ, क्योंकि हाँ उस टाइम फिर ऑन द बेस ऑफ रिजर्वेशन लाइक वो बहुत कंट्रोवर्शियल मंडल स्टेटमेंट था, मंडल कमीशन था। उसके बाद फिर बहुत विवाद हुए, फिर शायद सरकार भी चेंज हुई थी। तो इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट इट, जस्ट गूगल इट एंड यू विल गेट टू नो अबाउट इट, सिंपल इज दैट। इन कास्ट एंड पार्टी पॉलिटिक्स, देखो कास्ट इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ द इंडियन पार्टी सिस्टम। सम पॉलिटिकल पार्टीज आर डायरेक्टली बेस्ड ऑन कास्ट, लाइक बीएसपी, बहुजन समाजवादी पार्टी, ठीक है। while some parties really make particular caste groups as their vote bank. Here the regional political parties have caste basis, जैसे DMK and AIDMK, वो non-Brahminical political parties है, like they don't support Brahmins, okay? They cater about the other three. I समझ। BSP takes support of the scheduled caste, where the BJP is supported by high caste Hindus and trading community. I समझ। BJP जैसे हम बनिया उनको सपोर्ट करते हैं और हाई कास्ट हिंदूज पर्टिकुलरली ब्राह्मण्स इनको सपोर्ट करते हैं, ठीक है। कास्ट एंड एजुकेशन, द रोल ऑफ कास्ट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग इलेक्शंस। कैसे? द सिलेक्शन ऑफ अ कैंडिडेट फ्रॉम अ पर्टिकुलर कंस्टिट्यूंसी बेस्ड ऑन हिज कास्ट कंसिडरेशंस। आपको पता है लाइक टिकट कैसे दिया जाता है? लाइक देखो, टिकट भी बहुत एक सोफिस्टिकेटेड प्रोसेस से दिया जाता है, ये नहीं कि किसी रैंडम बंदे को भी टिकट दे। इट इज़ बेस्ड ऑन द कास्ट पॉलिटिक्स। आपको उसका कास्ट कंसिडर करना पड़ता है एक पॉलिटिकल पार्टी को, तभी उसको वो लाइक इलेक्शन में खड़ा किया जाता है। ही शुड बिलोंग टू अ डोमिनेंट कास्ट और शुड बी एबल टू गेट सपोर्ट फ्रॉम पर्टिकुलर कास्ट। उसको एक हिसाब से एनालाइज किया जाता है, भाई अगर इसको उठाना है, क्या ये उस कास्ट से बिलोंग करता है जो डोमिनेंट है, क्या ये वोट बटोर सकता है, ठीक है। तो उसी हिसाब से होता है। तो भाई इलेक्शन में कास्ट 900% इन्वॉल्व है, ठीक है। Parties feel that a candidate belong to a particular caste which is measured in there has a bright chance of getting elected. ठीक? Generally, people vote and support the candidate of their respective area. Consequently, the caste-based associations play a significant role during elections. Even secular political parties, जैसे कांग्रेस बोलती है हम secular है, CPI या CPI बोलते हैं हम caste ridden है, लेकिन no, eventually caste का तो बहुत मायने रखता है, ठीक है। देयर हैज बीन अ कांस्टेंट स्ट्रगल बिटवीन द डोमिनेंट कास्ट ऑफ कमानाज एंड रेड्डीज इन आंध्र प्रदेश। वहाँ पे भी फिर वोट बैंक उसी हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। देखो, कास्ट एंड पावर पॉलिटिक्स, आपको पता है कास्ट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट का लाइक सिग्निफिकेंट रोल इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। द पार्टी इन पावर ऑलवेज ट्राइज इज बेस्ट टू विन द फेवर ऑफ मेजर कास्ट ग्रुप्स, हमेशा लाइक मेजोरिटी का सपोर्ट हो। Congress tries to nurture scheduled caste at its vote bank. Regional parties always use political power for those caste groups which vote and support during elections. और moreover जब recruitment होती है ना political office में, it is based on caste consideration. जो लोग ज़्यादा लाइक मेजोरिटी जिनकी कास्ट है उन्हीं को ज़्यादा लाइक प्रेफरेंस दिया जाता है, ठीक है। कास्ट एंड वोट पॉलिटिक्स, देखो द रोल ऑफ कास्ट एज वोट पॉलिटिक्स कैन बी सीन इन द कांग्रेस रेजिम। कैसे? आफ्टर 1969 कांग्रेस स्प्लिट, जो मिस्टर इंदिरा गांधी थी उसने बहुत ट्राई किया है कि वो सपोर्ट रिलाई करे किस पे, बैकवर्ड कास्ट लीडर्स पे। द फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट इन सेंटर, जो जनता पार्टी थी ना 1977 में, इट वाज अ रिजल्ट ऑफ अ कोalition ऑफ थ्री मेजर सोशल ग्रुप्स, जो मिडिल एंड रिच पीजेंट थे और मुस्लिम्स थे और शेड्यूल कास्ट थे, ठीक है। चरण सिंह पहला लीडर था जिसने रिकॉग्नाइज किया पीजेंट कास्ट को और वर्क टुवर्ड्स कंसोलिडेटिंग इट। कर्पूरी ठाकुर जो था बिहार का, वो दूसरा लीडर था जिसने आर्टिकुलेट किया टुवर्ड्स अदर बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है। इवन आफ्टर द एमर्जेंस ऑफ जनता दल विद द जनता पार्टी और लोक दल और जनमोर्च, उन्होंने रिप्रेजेंटेशन रिफ्लेक्ट किया किनका, ओबीसीज पे। और वीपी सिंह ने बोला कि 60% ऑफ जनता दल टिकट्स किनको दो, एस सीज और ओबीसीज को। आया समझ? कास्ट एंड पोलिटिकल लीडरशिप,
देखिए, लीडरशिप इन पॉलिटिक्स इज ऑल्सो मेजर्ड बाय कास्ट इन इंडिया। जैसे लीडरशिप ऑफ कांशीराम एंड नाउ मिस मायावती इज बेस्ड ऑन कास्ट। आया समझ, बीएसपी की जो सुप्रीमो है। इन द सेम मैनर द लीडरशिप ऑफ चौधरी चरण सिंह इन यूपी, कर्पूरी ठाकुर इन बिहार एंड देवराज उर्स इन कर्नाटक कुड बी इवैल्यूएटेड थ्रू कास्ट basis. Yeah, it is entirely motivated by caste. The leadership of Lalu Prasad Yadav in Bihar is also an example of caste-based leadership. भाई यादव है, सबसे ज्यादा है वहां पे, इसीलिए भाई ये चीफ मिनिस्टर बना, इसीलिए ही इज द सुप्रीम ऑफ आरजेडी। ठीक है। कास्ट एंड वायलेंस क्या है? देखो, कास्ट बेस्ड वायलेंस ऑफन फाइंड्स इट्स वे इनटू पॉलिटिक्स। हमेशा जब भी कास्ट बेस्ड वायलेंस होती है ना, इट इवेंचुअली फाइंड्स इट्स वे इनटू पॉलिटिक्स, घुस ही जाती है पॉलिटिक्स में। देयर आर ट्रेडिशनल डिफरेंस बिटवीन हायर कास्ट एंड लोअर कास्ट, हमेशा रहता है। ठीक है। समटाइम्स दिस डिफरेंस टेक द शेप ऑफ वायलेंस इन द वे ऑफ स्ट्रगल फॉर पावर। कभी कभार बहुत विवाद भी होते हैं, इवन वायलेंस भी होती है। ठीक है। सिर्फ भूखे लाइक सत्ता के लिए जो भूखे रहते हैं ना, तो इवेंचुअली वो हो जाता है। कास्ट फेवर इन पॉलिटिकल सोशलाइजेशन लीडरशिप। देखो, जो वेरियस कास्ट ग्रुप होते हैं उनकी लॉयल्टीज होती है बिहाइंड वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज एंड देयर आइडियोलॉजीज। इवन एवरी इंडियन citizen inherits a caste and grows up a member of particular caste group। हमेशा he comes under the influence of caste groups and casteism while choosing his political orientations। हमेशा जब भी वो अपनी political orientation को choose करता है, attitudes को choose करता है, beliefs को choose कर सकता है, he like every way he comes under the influence of caste groups and casteism। इसीलिए caste values have influence on the socialization, political thinking, awareness and participation। it also influences the process of leadership recruitment। जैसे जाट का एग्जांपल दिया मैंने, या बिश्नोईज या ब्राह्मण्स इन हरियाणा, whereas the Reddys and Kamas and Valamas provide state leadership in Andhra Pradesh। Correct। जैसे हम लाइक कांग्रेस की बात करें, दीपेंद्र सिंह हुडा, भूपेंद्र सिंह हुडा, दे आर द जाट्स, इसीलिए लाइक दे हैव मेजर चंक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द जाट कम्युनिटी। गॉट इट। कास्ट एंड लोकल गवर्नमेंट। देखो, द कास्ट हैज बिकम अ रिकॉग्नाइज्ड रियलिटी इन द वर्किंग ऑफ पंचायती राज एंड अदर इंस्टीट्यूशन ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंडिया। आपको पता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रहता है कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स का। It has been observed that caste-based factionalism in rural areas of India has one of the biggest obstacle factors in organization if it were about पंचायती राज। पंचायती राज अच्छे से काम नहीं करता है क्योंकि उसमें हमेशा कास्ट बेस्ड फैक्शनलिज्म रहा है। ठीक है। कास्ट has become an important channel of mobilization, communication, representation and leadership in the electorate and political process and rulers of India। क्योंकि कास्ट इज द ड्राइविंग फैक्टर। आप कैसे मोबिलाइज करते हो, आप कैसे कम्युनिकेट करते हो, आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, आप कैसे लीडरशिप ये डिविएट करते हो between the electorate and political process in the rural areas of India, because it is always influenced by caste। You can't take it out of the scene। caste is a divisive and as well as cohesive factor। डिवाइड भी करता है, जोड़ता भी है। कैसे? देखो, कास्ट एक्सेस बोथ डिवीजन एंड कोहेसिव फोर्स इन इंडियन पॉलिटिक्स। इट प्रोवाइड्स अ basis for emergence of several interest groups in Indian political system of which competes with every other group in the struggle of power। I told you भाई, like I mean like power is the crux of it। जब तक आप सत्ता में हो तब तक आपकी जय जय है। जब आप सत्ता से गिर जाओगे then you're done and dusted। So it also acts as a unifying force। जैसे अभी मुझे लगता है like Yadavs came in together and they eventually defeated the BJP। आया समझ? like in UP। So it has always like been like it can use as a decisive and is can use as a cohesive force। तो इसीलिए मैं लाइक कास्ट एंड इंडियन पॉलिटिक्स है ना, लाइक इट इज़ अ वेरी लाइक डीप एंड इट्स अ वेरी वेल रूटेड सब्जेक्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स। तो हमेशा लाइक कास्ट इज डिटरमाइंस लाइक द नेचर ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड इवन लाइक ब्यूरोक्रेट्स को भी बहुत प्रेफरेंस दी जाती है। कभी लाइक इफ ही बिलोंग्स टू अ सर्टेन कास्ट ही इज गिवन अ लाइक अ prime position, he's given prime posting। So you can't take this out of the Indian political system। आया समझ? तो दिस इज द रियलिटी ऑफ द कास्ट सिस्टम। तो आपके लिए क्वेश्चन होगा, हाँ, आपको रोल ऑफ कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स लिखना है। ठीक है। और आपको कुछ डेफिनेशंस लिखनी है, लाइक व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स, और व्हाट इज द definition of different thinkers according to caste। And your second question is role of caste in Indian politics। ठीक। This is your task। And moving on with the chapter 21, that is language and politics in India। देखो, आप linguistic form में भी बहुत ज़्यादा deviation भी होता है politics में। ठीक है। देखो, since independence in 1946 the linguistic problem has served as a base for organizing interest group। ठीक है। linguistic problem लैंग्वेज के आधार पे, it has become the sensitive political issue। बहुत sensitive है क्योंकि अभी अगर हम देखें लाइक बहुत हमेशा लाइक टाइम टू टाइम इस पे बहुत ज़्यादा बहस होती है, बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी होती है। ठीक है। Many Indian nationalists originally intended that Hindi would replace English, the language of British rule 19 since 1750 as the medium of communication। लेकिन वो हुआ नहीं क्योंकि like not everybody in India can speak Hindi। आया समझ? इसलिए both Hindi and English were used and each has its own supporters। During the days of freedom struggle, national leaders had always promised the mass that the Indian language will be fully developed in free India and even states will be reorganized on the basis of language so that each language got full opportunity to develop and grow। ठीक है। हाँ, वो तो पता ही है, उसके आधार पे भी states को
बांट दिया गया. इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली टू मेक अ लैंग्वेज एज द नेशनल लैंग्वेज फॉर इंडिया. क्यों? क्योंकि सारे नहीं स्पीक करते. द सपोर्टर ऑफ इंग्लिश वांटेड टू कंटिन्यू इंग्लिश एज द नेशनल लैंग्वेज, वेयर एज अदर्स हु सपोर्टेड हिंदी एज द रीजनल लैंग्वेज. आया समझ? तो बहुत विवाद होता था बीच में. द दार कमीशन was set up under the government. We submitted its report in 1948 में उसने रिपोर्ट सबमिट की. It stated that immediate formation of linguistic states were not possible because of serious problem of economic instability and foreign aggression. ठीक है, कांग्रेस ने जेवीपी कम्युनिटी को कंसिडर किया. इट कंसिस्ट ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड पत्ताबाई सीतारामैया. उन्होंने क्या बोला? उनने पोस्टपोन किया लिंग्विस्टिक रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोविंसेस. आया समझ? क्योंकि उस टाइम आर्थिक स्थिति उतनी जबरदस्त नहीं थी इंडिया की. आया समझ? और कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स थे. तो फिर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली आई जिसने कंक्लूड किया कि हिंदू इन देवनागरी स्क्रिप्ट शुड बी द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया. But it was not easy to immediately replace English by Hindi. आया समझ? Hence the constitution provided that English would be continued for official work for a period of 15 years. लेकिन आज भी होता है. ठीक है, आज भी बहुत जगह इंग्लिश यूज होता है, और जहाँ पे हिंदी का उतना ये नहीं है तो हिंदी इज इंग्लिश इज यूज. आया समझ? देखो, अब लैंग्वेज इशू एंड पार्टी पॉलिटिक्स. आपको पता है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने जब हिंदी को देवनागरी स्क्रिप्ट में अडॉप्ट किया है एज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ यूनियन, बट इट नॉट सॉल्व द लैंग्वेज प्रॉब्लम. आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वेरियस पोलिटिकल पार्टीज जो थी उन्होंने पोलिटिसाइज किया लैंग्वेज प्रॉब्लम को. दे यूज्ड इट एज ए इंस्ट्रूमेंट पावर पॉलिटिक्स. जैसे देखो, रोल ऑफ कांग्रेस क्या था? Being a heterogeneous party, like it is not a homogeneous party, it takes everybody in consideration. The Indian National Congress should not have unanimity amongst the members on language issue. लाइक यूनानिमस नहीं थे, सारे एक राय नहीं रखते थे. ठीक है, सम ऑफ इट्स पावरफुल लीडर्स लाइक सेठ गोविंद दास, डॉक्टर रघुवीरा, मोरारजी देसाई एंड पुरुषोत्तम दास टंडन वेर इन फेवर ऑफ स्पीक ऑफ हिंदी लैंग्वेज आफ्टर 1965. Whereas leaders such as T.T. Krishnamachari and Kamaraj Nathar advocated a flexible approach. उन्होंने बोला नहीं, सिर्फ हिंदी नहीं चलेगा. We should have a flexible approach. Prime Minister Jawaharlal Nehru opposed the idea of imposition of Hindi in the non-Hindi states. उन्होंने बोला भाई जहाँ पे हिंदी स्पीक नहीं होती है वहाँ पे हिंदी को क्यों थोपे. ठीक है, गोविंद बलंत पंत एंड लाल बहादुर शास्त्री लेंड देयर सपोर्ट. उन्होंने बोला हाँ सही है, नेहरू सही बोल रहा है. ठीक है, सोशलिस्टिक लैंग्वेज क्या है? देखो, जो सोशलिस्ट थे जैसे आचार्य नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया, उन्होंने बोला नहीं यार, हम तो भाई हिंदी एडवोकेट करेंगे बिकॉज दे वर स्टॉन्च चैंपियंस, वो इसके बगैर नहीं मानते थे. एंड डिजायर्ड कंप्लीट स्विच ओवर बाय 1965. मैं बोला 1965 के बाद फुल्ली रिप्लेस होना चाहिए इंग्लिश विद हिंदी. बट जो अदर सोशलिस्ट थे लाइक जॉर्ज फर्नांडिस एंड एसएम जोशी ने बोला नहीं भाई, ऐसा नहीं चलेगा. ठीक है, कम्युनिस्ट का व्यू क्या था? देखो, जो कम्युनिस्ट थे ना, उन्होंने सपोर्ट किया नॉन हिंदी रीजन्स को. सो दे अपोज्ड हिंदी एज देयर इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन एंड एडवोकेट द रिटेंशन. उन्होंने बोला भाई इंग्लिश वापस लाओ. ठीक है, हमें हिंदी नहीं आती, उसका मतलब तुम हिंदी हम पे थोप नहीं सकते हो. दे वर इंस्पायर्ड बाय द सोवियत यूनियन. वो कहाँ से इंस्पायर हुए थे? सोवियत यूनियन से. ठीक है, दे वर ऑफ द ओपिनियन दैट ऑल रीजनल लैंग्वेज शुड बी ट्रीटेड एज नेशनल लैंग्वेज. उन्होंने बोला जो भी रीजनल लैंग्वेज है उसको ट्रीट किया जाए एज नेशनल लैंग्वेज. द रीजनल लैंग्वेज शुड बी ट्रीटेड एज द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड एजुकेशन अप टू द हाईएस्ट लेवल्स. गॉट इट? लेटर दे चेंज देयर एटीट्यूड एंड रिकॉग्नाइज द नेसेसिटी फॉर अ कॉमन लैंग्वेज. उसके बाद उन्होंने बोला नहीं भाई, एक कॉमन लैंग्वेज होनी चाहिए एंड लैंग्वेज टू बी यूज्ड फॉर इंटरप्रोविंशियल कम्युनिकेशन ऑल इंडिया कंटेक्ट्स. और वो लैंग्वेज यूज होनी चाहिए फॉर इंटरप्रोविंशियल कम्युनिकेशन और ऑल इंडिया कंटेक्ट्स. जनसंघ का व्यू क्या था? उन्होंने बोला भाई देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन था रिलेटिव लैंग्वेज रोल, लेकिन उनके बोला भाई इट इज़ नेसेसरी फॉर चेंज टू आप रीजनल लैंग्वेज में स्विच करो. क्योंकि भाई देखो, स्टेट में बहुत सारी लैंग्वेज होती है, तो यू कैन नॉट लाइक मेक श्योर कि लाइक लोग वो स्पीक नहीं करें. ठीक है, सो दे पुट मोर प्रोविजंस ऑन या मोर एम्फेसिस ऑन रीजनल लैंग्वेजेस. ठीक है, उसके बाद आते हैं हम देखो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस अबाउट लैंग्वेज. आर्टिकल 343 और 351 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि फॉलोइंग हेडिंग्स से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं लाइक व्हाट इज द स्टांस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिगार्डिंग द ऑफिशियल लैंग्वेजेस. देखो, लैंग्वेज ऑफ द यूनियन. आर्टिकल 343 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट विल बी द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, but English will continue to be used for the official purpose for a period of 15 years. But the parliament can extend this period. और ये अभी भी extend हुआ है, अभी भी like extend हो ही रहा है. ठीक है, और आर्टिकल 344 क्या कहता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का? It deals with the appointment of a commission for the development of the languages. It is provided that first such commission shall be appointed after 5 years. 5 साल के बाद ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वेयर इज गैप ऑफ द सब्सिक्वेंट कमीशन विल बी 10 ईयर. उसके बाद फिर 10 साल के बाद कमीशन बनेगा. ठीक है, द कमीशन शैल मेक रिकमेंडेशंस टू द प्रेसिडेंट फॉर द प्रोग्रेस यूज ऑफ हिंदी लैंग्वेज. रिकमेंडेशन करेगा प्रेसिडेंट को कि भाई आपको हिंदी लैंग्वेज को कैसे प्रोग्रेस यूज करना है फॉर द ऑफिशियल पर्पस ऑफ द यूनियन, एंड restrictions on the use of English language for any of the official purposes of the union. It also provides that while making this recommendation, the commission should give due regard to the industrial and scientific development. ठीक है, उन्हें देखो रिकमेंडेशंस भी करनी है, लेकिन भाई उसके क्या करना है? ड्यू रिगार्ड हमें देना है इंडस्ट्रियल, कल्चर और साइंटिफिक एडवांस ऑफ द इंडियन को, एंड नॉट जस्ट क्लेम्स एंड इंटरेस्ट ऑफ पर्संस बिलोंग टू नॉन हिंदी स्पीक. और हमें इनको लाइक क्लेम्स और इंटरेस्ट सिर्फ उनके लाइक कंसिडर नहीं करने जो नॉन हिंदी स्पीकिंग से लाइक जो पब्लिक सर्विस में आते हैं. ठीक है, इट हैज बीन प्रोवाइड दैट पार्लियामेंट विल सेट अप अ कमिटी ऑफ 30 मेंबर्स. 20 लोकसभा से होंगे, 10 राज्यसभा में से होंगे, जो एग्जामिन करेंगे रिपोर्ट कमीशन का और मेक रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट. गॉट इट? उसके बाद देखो अंडर आर्टिकल 345 जो स्टेट लेजिस्लेटर, इट इज एम्पावर्ड टू अडॉप्ट वन और मोर लैंग्वेजेस फॉर ऑफिशियल यूज इन द स्टेट. मुझे लग रहा है जैसे जम्मू कश्मीर में हिंदी
और उर्दू और इंग्लिश भी है शायद. So Article 346 of the Indian Constitution deals with the official language to be used in the communication between two states and between a state and a union government. ठीक है, चाहे वो हिंदी हो चाहे वो इंग्लिश हो. It provides English as a channel of communication. However, if two states agree that Hindi should be channel of communication between them, ये states की तक है यार. अगर वो चाहते हैं कि वो हिंदी रखे वो हिंदी रख सकते हैं. But English is the channel of communication. Article 347 authorizes the president to direct the state to use a particular language as official language, provide a substantial population area has matter representation that the language may be used there for all. देखो आर्टिकल 347 एक प्रेसिडेंट को अथॉरिटी देता है कि आप एक स्टेट को डायरेक्ट कर सकते हो, आप एक पर्टिकुलर लैंग्वेज यूज करो, प्रोवाइडेड कि उसको एक सब्सटेंशियल पॉपुलेशन ने बोला होगा कि भाई हाँ इतने लोग यहाँ पे ये लैंग्वेज स्पीक कर रहे हैं. ठीक है. उसके बाद लैंग्वेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर. क्या? According to 348, English shall be the official language of the Supreme Court, High Courts, Parliament, and the state legislature. However, governor of a state, with the previous consent of the president, may authorize the use of Hindi or other language. आया समझ? ऐसा तो इंग्लिश है लेकिन वो ऑथराइज कर सकता है. आया समझ? और it depends on the administration of the high courts or whatever the way are they functioning. अगर वो इत्तेफाक रखते हैं कि हम भाई ये वाली लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, या it's not a big problem. Moreover, when the state legislature has prescribed any language other than English for its legislative work of rule making, such measures will be translated into English. अगर आप फॉर इंस्टेंस इंग्लिश के बगैर आप कोई इंग्लिश यूज हो रही है तो उसको फिर बाजाब्ता ट्रांसलेट किया जाएगा इंग्लिश को और फिर ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश किया जाएगा. ठीक है. एंड देयर शैल बी अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन इंग्लिश. जो अथॉरिटेटिव टेक्स्ट है वो इंग्लिश में होने चाहिए. और स्पेशल डायरेक्टिव्स क्या है देखो. आर्टिकल 350 स्टेट करता है कि जो एवरी पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड टू सबमिट अ रिप्रेजेंटेशन फॉर रीड्रेस ऑफ एनी ग्रीवियंस ऑफ एनी ऑफिसर ऑफ अथॉरिटी इन लैंग्वेजेस यूज्ड इन द यूनियन. आप किसी चीज़ का भी ग्रीवियंस रिड्रेस कर सकते हो कहीं भी ऑफिसर से या कोई भी अथॉरिटी ऑफ यूनियन से जो लैंग्वेजेस यूनियन और स्टेट में यूज होती है. ऐसा समझ. और आर्टिकल 350A के अंडर बोलते हैं कि जो स्टेट एंड एवरी लोकल अथॉरिटी अंडर द स्टेट इट शैल एंडेवर टू प्रोवाइड एडिक्वेट फैसिलिटीज फॉर इंस्ट्रक्शन इन द मदर टंग एट द प्राइमरी स्टेट ऑफ एजुकेशन टू द चिल्ड्रन. जैसे हमें कश्मीरी पढ़ाते थे, आप पता नहीं आपने पढ़ा होगा लेकिन हमें कश्मीरी पढ़ाते थे 8 तक. बिलोंगिंग टू लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप्स. जो माइनॉरिटी ग्रुप्स होते हैं लिंग्विस्टिक. आया समझ. जैसे फॉर इंस्टेंस कहीं पे जो माइनॉरिटी ग्रुप होगा जो उनकी लैंग्वेज होगी ना उसको बहुत एम्फेसिस पुट करना है और प्राइमरी लेवल तक वो पढ़ाना है स्कूल्स में. एंड द प्रेसिडेंट में इशू सच डायरेक्शंस टू एनी स्टेट एज ही कंसिडर नेसेसरी. जब भी उसको ठीक लगे वो डायरेक्शंस कर सकता है स्टेट को कि आप ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड करो. इट हैज आल्सो बीन प्रोवाइड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशल ऑफिसर बाय द प्रेसिडेंट फॉर इन्वेस्टिगेटिंग एंड फाइंडिंग आउट द एक्सटेंट टू विच द इंटरेस्ट ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हैज बीन प्रोटेक्टेड. आया समझ. एक स्पेशल ऑफिसर वो डिवोट कर सकता है इस चीज़ के लिए ताकि वो देख पाए कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज का ख्याल रखा जा सकता है कि नहीं. मोर एवर इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट टू प्रमोट हिंदी थ्रू आउट द कंट्री. और ये यूनियन गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हिंदी को प्रमोट करे थ्रू आउट द कंट्री. अब देखो लैंग्वेज कमीशन है एक्ट्स. आपको पता है ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन बना था 5 साल के बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन इन एक्ट आया था. हेंस 21 मेंबर कमीशन वाज सेटअप इन 1951 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ बीजी खेर. और कमीशन ने क्या रिकमेंड किया था. उन्होंने बोला था इंग्लिश शुड बी कंटिन्यूड एज एन अल्टरनेटिव मीडियम फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम जैसे ऑल इंडिया सर्विस यूपीएससी एंड फॉर यूज इन द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स. ठीक है. उन्होंने बोला था हिंदी को कंपलसरी में शुड बी मेड फॉर द ऑल इंडिया सर्विस. लेकिन हाँ आज भी आप हिंदी में एग्जाम दे सकते हो हिंदी मीडियम में. आया समझ. तो ये या आप इंग्लिश में दे सकते हो या हिंदी मीडियम में दे सकते हो. एंड एट द टाइम ऑफ चेंज ओवर एंटायर स्टेट बुक शुड बी इन हिंदी. और जिस टाइम चेंज होगा तो जो एंटायर स्टैट्यू बुक होगी वो हिंदी में होगी. और रिचुअल लैंग्वेज को रिटेन किया जाएगा जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए. बट जो इंटर स्टेट कम्युनिकेशन है वो हिंदी में होने चाहिए. और जो प्राइमरी एजुकेशन है वो रीजनल लैंग्वेज में होना चाहिए. बट एट द सेकंड स्टेज इंस्ट्रक्शन ऑफ हिंदी शुड बी मेड कंपलसरी. लेकिन वो कंपलसरी होगा. और नेशनल एकेडमी ऑफ लैंग्वेज हैदराबाद में सेटअप की जाएगी जहाँ पे 14 लैंग्वेज ऑफ इंडिया को डेवलप किया जाएगा एज स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. लेकिन अभी मुझे लगता है 16 मेजर लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया है. आप नोट के पीछे काउंट करना कितनी लैंग्वेजेस है. ठीक है. देखो रिएक्शन टुवर्ड्स दिस रिकमेंडेशन. इनका रिएक्शन क्या था लोगों का या दूसरे ये पॉलिटिकल पार्टीज का. द रिपोर्ट ऑफ द कमीशन वाज नॉट यूनानिमस. सारी सबकी राय एक ही नहीं थी. 2 मेंबर्स ऑफ द कमीशन नेमली डॉक्टर सुनीति कुमार चैटर्जी एंड डॉक्टर पी सुब्रमण्यम. उन्होंने बोला नहीं यार ये रिकमेंडेशन सही नहीं है. उन्होंने बोला हेस्टी अटेम्प्ट. बहुत जल्दी आपने एक अटेम्प्ट किया कि आप चेंज ओवर लॉ या रिजल्ट करो ऑफ इम्पोजन ऑफ हिंदी और नॉन हिंदी स्पीकिंग पीपल. ये तो गलत है ना. इससे पब्लिक लाइफ कंफ्यूज होगी. दे वेर फेवर कि आप वॉलंटरली अडॉप्ट हिंदी करो पूरे से. लाइक आप रिजिड नहीं हो कि आपको हिंदी बोलनी ही बोलनी है. इसीलिए स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन. उसके बाद जब ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन अभी भी काम कर रहा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक और कमीशन सेटअप किया स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन. उसको कौन हेड कर रहा था. फजल अली विद अदर 2 मेंबर्स नेमली एच एन कुंजुरू एंड के एम पनीकर. उन्होंने बोला कि हम एस्टैब्लिश करेंगे ऑर्गेनाइज स्टेट करेंगे ऑन द बेस ऑफ लैंग्वेज. द पीपल स्पीकिंग सेम लैंग्वेज शुड बी इंक्लूडेड वन स्टेट. जो एक भाषा बोलते हैं उनको एक स्टेट में रखो. जो दूसरी भाषा बोलते हैं उनको दूसरे स्टेट में रखो. Most of the recommendations were accepted. Thus, State Reorganization Act was passed in 1956 to reorganize the states on the basis of language. आया समझ. तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट एंड स्टेट पॉलिटिक्स. आया समझ. जैसे मैंने आपको बोला महाराष्ट्र गुजरात पहले महाराष्ट्र का पार्ट था.
लेकिन इवेंचुअली फिर उसको गुजरात में बाइफरकेट किया गया बिकॉज गुजरात स्पीकिंग पीपल वेयर इन फेवर ऑफ अ डिफरेंट स्टेट आई समझ। तो उसके बाद हाँ, जस्ट देखो जब स्टेट रिओर्गनाइजेशन एक्ट पास हुआ 1956 में, उसने फिर स्ट्रॉन्ग लिंग्विस्टिक मूवमेंट्स को बर्थ दिया इंडिया में। इट इंक्रीज द लैंग्वेज प्रेशर ऑन पॉलिटिक्स। उसके बाद कमीशन ने क्या बोला, उन्होंने बोला कि भाई बॉम्बे स्टेट को बाइफरकेट करो गुजरात और हिंदी मराठी स्पीकिंग में, और उसके बाद हो गया। तो 1960 में फिर बॉम्बे स्टेट को गुजरात और महाराष्ट्र में डिवाइड कर दिया गया। ऐसे ही पंजाब को किया गया, क्योंकि वहाँ पे रेजोल्यूशन पास किया था कि पंजाब इन गुरमुखी स्क्रिप्ट एंड हिंदी देवांग विल बी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट इन हिंदी एंड। उसके बाद उसको भी डिवाइड कर दिया गया पंजाब और हरियाणा में, ठीक है, पंजाब में पंजाबी स्पीकिंग और हरियाणा में हिंदी स्पीकिंग, ठीक है। तो देखो 1957 में जो 50 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट थे फ्रॉम नॉन स्पीकिंग हिंदी स्टेट्स डिमांड दैट हिंदी शुड नॉट टेक ओवर इंग्लिश बाय 1956। उसके बाद उन्होंने बोला कि लाइक 1990 में आप स्टेप्स लेना है कि आप ऐसा कुछ करो। 1958 में मद्रास गवर्नमेंट सजेशन किया कि आप ऐसे प्रोविजन लाओ जो हिंदी में हो, बट इट शुड नॉट रिप्लेस इंग्लिश अनलेस ऑल द स्टेट्स कॉन्कर टू इट, सबकी एक ही राय हो, ठीक है। देखो इन 1958 में वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली ने यूनानिमस रेजोल्यूशन किया फॉर रिटेनिंग इंग्लिश एज देयर ऑफिशियल लैंग्वेज इंस्टेड ऑफ हिंदी, क्योंकि वहाँ पे बंगाली स्पीकिंग है मोस्ट, ठीक है। आसाम लेजिस्लेटिव असेंबली ने पास किया रेजोल्यूशन मेकिंग आसामीज एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ स्टेट। तो बंगालीज ने बोला नहीं आप बंगाली ये किए। उसके बाद शायद रॉयट्स हुए और इवेंचुअली फिर उसको भी बाइफरकेट किया गया। मुझे लगता है आसाम एंड वेस्ट बंगाल वाज द सेम लाइक स्टेट एंड देन इट वाज बाइफरकेटेड बिटवीन द असमी स्पीकिंग पीपल एंड द बंगाली स्पीकिंग पीपल। तो साउदर्न स्टेट में भी ऐसा ही एग्रेसिव लैंग्वेज इशू होता है। जैसे नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स है वो हमेशा एजिटेट होते थे जब भी ये कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन इंट्रोड्यूस किया जाता था, लाइक हिंदी का ये जब हुआ था। सो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, इट क्रिएटेड अ प्रॉब्लम एंड इवेंचुअली दे डिड नॉट लाइक अडहेयर टू द रिकमेंडेशंस। तो उसके बाद 1959 में फिर जब उनको लगा कि प्रॉब्लम हो रही है, जो उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने बोला इंग्लिश एज एन ऑटोनॉमस लैंग्वेज शुड रिमेन एज लॉन्ग एज पीपल रिक्वायर इट एंड हिंदी शुड नॉट बी इम्पोज्ड ऑन हिंदी स्पीकिंग पीपल। तो तभी जो यूनियन होम मिनिस्टर है जी बी पंत ने बोला 1960 में कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज नॉट एक्सेप्टिंग ऑल रिकमेंडेशन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन एंड दैट हिंदी शुड नॉट बी मेड कंपलसरी फॉर रिक्रूटमेंट टू ऑल इंडिया सर्विसेज, ठीक है। कंपलसरी नहीं है, जैसे आज भी कंपलसरी नहीं है। आप इंग्लिश में भी दे सकते हो, हिंदी में भी दे सकते हो। इन अप्रैल 1960 सेंट्रल गवर्नमेंट इशूड इंस्ट्रक्शंस मेकिंग टीचिंग एंड ट्रेनिंग ऑफ हिंदी ऑब्लिगेटरी फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। आया समझ। देखो नेशनल इंटीग्रेशन कॉन्फ्रेंस इन थ्री लैंग्वेज फॉर्मा, ये क्या होता था जब अलीगढ़ में बहुत सीरियस रिवोल्ट्स हुए या राइट्स हुए और अदर पार्ट्स ऑफ कंट्री में, जो नेशनल इंटीग्रेशन कॉन्फ्रेंस था वो 1961 में कंडक्ट हुआ था, जिसने थ्री लैंग्वेज फार्मूला दिया। उनने क्या बोला, इट कॉल फॉर कंपलसरी टीचिंग ऑफ थ्री लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, क्या इन द स्कूल्स, क्या नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स वहाँ पे जो होती है, जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स है, लैंग्वेजेस टॉट शुड बी हिंदी, इंग्लिश एंड रीजनल लैंग्वेज वेयर हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स आल्सो शुड टीचर इंग्लिश लैंग्वेज। देखो जहाँ पे हिंदी स्पीकिंग पीपल थे वहाँ पे हिंदी पढ़ा और बाकी इंग्लिश पढ़ा, और जहाँ पे नॉन हिंदी है वहाँ पे इंग्लिश और बाकी रीजनल लैंग्वेजेस पढ़ा, ठीक है। ये रिकमेंड दैट इंग्लिश शुड बी रिप्लेस बाय इंग्लिश लैंग्वेजेस, रीजनल लैंग्वेज। उन्होंने बोला कि जो इंग्लिश है उसको आप रीजनल लैंग्वेज से रिप्लेस करो एट द यूनिवर्सिटी लेवल, और हिंदी शुड ग्रेजुअली रिप्लेस इंग्लिश एज लिंक लैंग्वेज। आया समझ। और इवेंचुअली इंग्लिश को रिप्लेस होना चाहिए, बट मुझे नहीं लगता अभी भी फुल रिप्लेसमेंट नहीं हुआ है, क्योंकि मेजोरिटी मैं नहीं चाहता, लेकिन मोस्ट ऑफ दी जगह है जहाँ भी लाइक ऑफिशियल वर्क और जहाँ भी लाइक गवर्नमेंट ऑफिस में पॉलिटिकल प्रोसेस में इंग्लिश इज़ वाइडली यूज। उसके बाद ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट आया 1963 का, वो पास किया था यूनियन पार्लियामेंट में। उसने उनने बोला भाई आप इंग्लिश का यूज़ बियॉन्ड 1965 करो, और उसको स्टेटस दिया गया एडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेज का। तो इट कुड बी यूज्ड फॉर ऑल ऑफिशियल पर्पसेस, बट द कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट एंड द हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स वाज टू बी डन इन हिंदी इन फ्यूचर। आया समझ। जो नॉन हिंदी स्टेट्स थे इंग्लिश ट्रांसलेशन को दिया गया, ठीक है। इट वाज फर्दर द गवर्नर स्टेट द परमिट द यूज ऑफ हिंदी। हाँ लाइक जाहिर सी बात है, फिर गवर्नर को पावर दिया गया विद द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, वो हिंदी का परमिशन दे सकता है यूज करने के लिए। आया समझ। बट एक इंग्लिश वर्जन भी प्रोवाइड किया जाएगा उस टाइम, ठीक है। द एक्ट वाज डेजिग्नेटेड टू फुलफिल द कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्टिव इन रिस्पेक्ट ऑफ हिंदी एंड टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ refraining from imposing Hindi on the non-Hindi speaking states. तो a strong reaction could be observed from Hindi and non-Hindi states, जैसे डीएमके ने तमिलनाडु में एंटी हिंदी एंड एंटी सेंटर एजुटेशन स्टार्ट किया, और आंध्र प्रदेश ने भी इस एक्ट का के अगेंस्ट रिएक्ट किया, और उन्होंने बिल अडॉप्ट की लेजिस्लेचर में रिटेनिंग द यूज़ ऑफ इंग्लिश। आया समझ। वेस्ट बंगाल में भी एंटी हिंदी रॉयट्स हुए, हिंदी फिल्म स्क्रीन नहीं हुआ करते थे वहाँ पे,
और इवन कर्नाटक, केरला और पौंडीचेरी में भी एंटी हिंदी एजिटेशन स्टार्ट हो गए। एंड ऑन द नॉर्दर्न साइड ऑफ इंडिया हिंदी सपोर्टर्स लॉन्च अगेंस्ट द कंटिन्यूड यूज ऑफ इंग्लिश एज और और जो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स थे वहाँ पे एंटी इंग्लिश प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए। उन्होंने बोला नहीं हम इसको एडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेज स्टार्ट नहीं करो। इवेंचुअली प्रोटेस्ट वायलेंट हो गए। तो फिर प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री ने एश्योरेंस दी क्या, जब वायलेंट लैंग्वेज एजिटेशंस हो गए और डिस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी हो गई, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर जो लाल बहादुर शास्त्री उस टाइम उन्होंने बोला कि भाई ठीक है हो गया, आप ज़्यादा मत ये करो। उसने बोला ठीक है इंग्लिश विल कंटिन्यू टू रिमेन एज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया एज लॉन्ग एज दे लाइक। द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट वाज अमेंडेड टू गिव प्लेस टू दिस एश्योरेंस, ठीक। तो इवेंचुअली अंग्रेजी को वो नहीं निकाल पाए। कोठारी कमीशन एंड इट्स रिकमेंडेशन, देखो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड एन एजुकेशन कमीशन नोन एज द कोठारी कमीशन 1964 टू लुक इनटू ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, ठीक है। 1964 में कोठारी कमीशन को सेटअप कर दिया गया ताकि आप वो एजुकेशन के एस्पेक्ट्स को देख पाए। इट सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन 1966 एंड प्रपोज्ड अ मॉडिफिकेशन ऑफ थ्री लैंग्वेज फार्मूला, जो पहले हमने पढ़ा था 1963 में जो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट आया था, ठीक है। तो इस कोठारी कमीशन ने क्या बोला भाई, हम मॉडिफिकेशन करेंगे इस थ्री लैंग्वेज फार्मूला को, ठीक है। तो फर्दर उसने बोला कि हम रीजनल लैंग्वेज को अडॉप्ट करेंगे यूनिवर्सिटीज़ में एंड इट शुड बी कंप्लीटेड इन 10 years एंड टिल देन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूशन शिल कंटिन्यू टू यूज इंग्लिश, ठीक है। तो अंग्रेजी को नहीं निकाल पाए इवेंचुअली, ठीक है। नेशनल मेडिटेशन कोठारी कमीशन ने क्या बोला भाई, डॉक्टर त्रिगुना सेन जो थी यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर, उन्होंने बोला लोकसभा में कि गवर्नमेंट हैज एक्सेप्टेड द प्रिंसिपल दैट रीजनल लैंग्वेज शुड बी अडॉप्टेड एज द मीडिया ऑफ एजुकेशन, लेकिन इंग्लिश विल बी रिप्लेस्ड बाय द इंग्लिश लैंग्वेजेस रीजनल लैंग्वेजेस इन ऑल सब्जेक्ट्स विद इन नेक्स्ट 5 to 10 years इन ऑल यूनिवर्सिटीज़। लेकिन जो स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस थी उन्होंने डाउट्स एक्सप्रेस किए अबाउट इट। इट गिव राइज टू अनदर लैंग्वेज कंट्रोवर्सी। A conference of vice chancellors of Indian universities resolved this issue, that change or regional language should be carried through in 5 to 10 years at the undergraduate level, but at the same time importance of English should be maintained in addition to the regional languages, particularly at the higher level of studies। और जिस जो उस टाइम डेप्यूटी पीएम थे उन्होंने क्या बोला, उन्होंने एडवोकेट यूज़ किया हिंदी और रीजनल लैंग्वेज फॉर लीगल पर्पजेज, ठीक है, लीगल पर्पसेस के लिए। एंड एक्ट्स ऑफ द पार्लियामेंट शुड बी ट्रांसलेटेड इनटू मेजर इंडियन लैंग्वेजेस विद इन 5 to 10 years। जो फॉरेन मिनिस्टर थे एमसी चावला, उन्होंने क्रिटिसाइज किया इस व्यू को और रिजाइन किया कैबिनेट से ऑन लैंग्वेज इशू। ही फेल्ट दैट दिस प्रपोजल अगेंस्ट द यूनिटी ऑफ इंडिया, इवन द फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सुब्बाराव आल्सो अपोज्ड इट। मतलब ये भी फेल है। ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1967, the government decided to amend the Official Language Act 1967 for the purpose of implementing some of the recommendations of the Kothari Commission। तो फिर अमेंडमेंट पास हुआ 1960 में, उसके बाद एक्सेप्ट किया गया कि कॉन्टिनेंस ऑफ इंग्लिश टिल स्विच और हिंदी वाज मेड, तब तक इंग्लिश चलेगी जब फुली स्विच नहीं होगा। इंट्रोडक्शन ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस एज द मीडिया ऑफ इंस्ट्रक्शन इन यूनिवर्सिटीज एंड द नीड ऑफ पॉपुलराइजिंग हिंदी इन इंडिया। उसके बाद एजुटेशन फिर से स्टार्ट, ठीक है। एंटी इंग्लिश राइट स्प्रेड हो गए उत्तर प्रदेश में, बिहार में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में। वेर इज एंटी हिंदी राइट्स बिगेन इन मद्रास, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका। उसके बाद नेशनल इंटीग्रेशन पैनल ऑफ नेशनल काउंसिल ऑफ रिसर्च, जो एनसीईआरटी की डेफिनेशन है, ठीक है। तो एनसीईआरटी सेटअप किया नेशनल इंटीग्रेशन पैनल 1973 में, तो लुक एट द प्रॉब्लम ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन वर्सेस लैंग्वेज पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। उन्होंने क्या रिकमेंड किया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इट शुड टेक इफेक्टिव स्टेप्स फॉर द स्प्रेड ऑफ हिंदी इन नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स along with one modern Indian language within a period of next 15 to 20 years, ठीक है। और उन्होंने बोला कि जो थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला है उसको विगरसली फॉलो किया जाए और जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ है उनको टेक्स्ट बुक्स दी जाए एट रीजनेबली लो रेट्स एंड फ्री इफ पॉसिबल, ठीक है। और उन्हें क्या बोला, बस इतना बोला, थ्री रिकमेंडेशन बोला। उसके बाद पॉलिसी ऑफ जनता गवर्नमेंट क्या थी, जब जनता गवर्नमेंट बनी 1977 में, फिर से एक एप्रीहेंशन अरोज हुआ इन द माइंड्स ऑफ नॉन हिंदी स्पीकिंग पीपल दैट हिंदी अब इम्पोज हो ही जाएगा, क्योंकि जनता गवर्नमेंट वाज इन सपोर्ट ऑफ अडॉप्टिंग हिंदी। बट उस टाइम उसके थोड़े बहुत शक उनके कम हो गए जब नए प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई और होम मिनिस्टर चरण सिंह बोला कि नहीं यार, हिंदी तो इम्पोज नहीं होगा नॉन हिंदी स्टेट्स में। देसाई ने बोला भाई ठीक है, देयर वाज अ नीड फॉर ऑल इंडिया लिंक लैंग्वेज एंड कॉमन स्क्रिप्ट टू स्ट्रेंथ द यूनिटी ऑफ कंट्री। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि भाई हिंदी हम आप पे थोप सकते, इसलिए जैसा चलता है वैसे रहने दो। हिंदी को नॉन हिंदी स्टेट्स पे हिंदी मत इम्पोज करने दो और इंग्लिश को कंटिन्यू रहने दो ऑल्टरनेटिव ऑफिशियल लैंग्वेज, और जो थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला है उसको कंटिन्यू रहने दो। और जो इंट्रोडक्शन ऑफ लैंग्वेज रीजनल लैंग्वेज एज मीडिया ऑफ इंस्ट्रक्शन इन यूनिवर्सिटीज़ है वो भाई अब स्टेट गवर्नमेंट्स की चॉइस है, हमें उसके साथ कुछ नहीं है। अगर कोई इंप्लीमेंट करना चाहता है वेल एंड गुड, अगर कोई नहीं करना चाहता है तो वो भी चलेगा। फिर 1980s रिलीज ऑफ द गोरखले कम्युनिटी रिपोर्ट ब्रॉट सीरियस लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम्स इन कर्नाटका। उसके बाद कर्नाटका में भी फिर इशू हो गए, जो गोरखले रिपोर्ट थी ना, दिस रिपोर्ट recommended the adoption of Kannada and not Sanskrit as the first language of the state। मैं बोला भाई कन्नड़ा is the first language of the state, not Sanskrit। उसके बाद कर्नाटक गवर्नमेंट ने मॉडिफाइड किया इन द फॉर्म ऑफ थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला। इट लेड टुवर्ड्स स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन फ्रॉम द कन्नड़ा स्पीकिंग पीपल। उन्होंने फिर
Canada speaking people say फिर over opposition आ गया, but the state government successfully maintained secured the support of three language formula. उसके बाद language issue remained alive in Andhra Pradesh and Kerala as a part of criminalization of politics. जो शिरोमणि अकाली दल ऑफ पंजाब ने बोला भाई पंजाबी लैंग्वेज को यूज़ किया जाए, डिमांड फॉर स्टेट ऑटोनॉमी, और इवेंचुअली शायद उसके बाद फिर पंजाब और हरियाणा ये डिवाइड हो गया. द जनता दल फ्रंट गवर्नमेंट ऑफ 1990 did not touch the language policy. उन्होंने बोला भाई हमें रहना, हमें जिंदा रहने दो. तो कांग्रेस वन गवर्नमेंट ऑफ 1991 डिसाइड टू पॉपुलराइज द यूज ऑफ हिंदी एज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन. ठीक है, हाँ इट डिपेंड्स ऑन द पॉलिटिकल पार्टी आल्सो कि वो कैसे इस चीज़ को देखे. ठीक है, तो 21 खत्म. उसके बाद देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है मुझे लगता है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. तो इसमें आपको मुझे लगता है सब कुछ लिखना पड़ेगा. हाँ यार, लैंग्वेज कमिश्नर एक्ट्स ये आपका क्वेश्चन होगा. ठीक है, इसमें आपको सब कुछ लिखना है. कोठारी कमीशन, थ्री लैंग्वेज फार्मूला. ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट, फिर प्रोटेस्ट कैसे होगे, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट. ठीक है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, कोठारी कमीशन, एश्योरेंस कह दिया लाल बहादुर शास्त्री ने. ठीक है, पॉलिसी क्या थी जनता गवर्नमेंट की, ये आपको सब लिखना है. ठीक है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन बनेगा, तो मेक श्योर कि वो अच्छे से आप फ्रेम करो. ठीक है, तो रिलीजन एंड पॉलिटिक्स. ठीक है, अब हम रिलीजन एंड पॉलिटिक्स पढ़ेंगे क्योंकि रिलीजन और पॉलिटिक्स का भी बहुत बड़ा रोल है. हाँ मतलब आज ख़त्म करते हैं, इसी वीडियो में इसको निपटाते हैं. ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा बन सकता है लेकिन हाँ इट्स वर्थ इट. ओके, देखो इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ डिवर्सिटी. ठीक है, डिवर्सिटी क्यों, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिलीजन पाए जाते हैं, ऐसा समझो. रिलीजियस प्लूरिज्म पाया जाता है जहाँ पे हिंदूज, बुद्धिस्ट, इस्लाम, सिख्स, क्रिश्चियनिटी एंड अदर्स हैव बीन कोएक्सिस्टिंग ग्रोइंग साइड बाय साइड. ये तो बहुत पुराना सेंसस है, ये डेटा आप रिवाइज कर सकते हो गूगल पे देख के. तो अभी तो डिफरेंट सिनारियो होगा. तो रियल मीनिंग ऑफ रिलीजन आपको पता होनी चाहिए. देखो मैन इज अ सोशल एनिमल एज वेल एज रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल बीइंग आल्सो. तो रिलीजन बहुत इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है हर किसी लाइफ में. ठीक है, रिलीजन एक नया फिनोमिना नहीं है सोसाइटी में, इसका इंस्टीट्यूशन बहुत पुराना है. ठीक है, इट हैज़ बीन देयर फॉर डिकेड्स, लाइक टिल लाइक जब से ह्यूमन सिविलाइजेशन इवॉल्व हुई है. ठीक है, और ये लाइक इट बेसिकली फोकसेस ऑन कि लाइक इंसान का ईमान ऑन सुपर नेचुरल फोर्सेज आया समझ, भरोसा. It is a concrete experience which is associated with emotions, especially with fear, awe, and reverence. Like it's your एक इमोशनल कनेक्शन और एक स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है अपने uh, बनाने वाले के साथ. हु एवर थिंग, जो भी लाइक कुछ भी बिलीव करता हो. तो जैसे टुर्की एक फिलोसफर था, उसने अपनी बुक में द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ में डिफाइन किया रिलीजन को यूनिफाइड सिस्टम ऑफ बिलीफ्स एंड प्रैक्टिस रिलेटेड टू सैक्रेड थिंग्स. ठीक है, दैट इज टू से थिंग्स आर सेट अपार्ट एंड फॉरबिडन, जहाँ पे हमें बोला जाता है कि गलत क्या है सही क्या है. ठीक है, और फ्रेजर की डेफिनेशन आप पढ़ सकते हो, सैपर की, ऑकबर्न की, फैक्स मुलर की. सो दे बेसिकली हैव डिफाइंड रिलीजन इन देयर ओन वे. ठीक है, तो इन शॉर्ट रिलीजन क्या है, इट्स अ मैटर ऑफ बिलीफ इन सुपर नेचुरल और सुपर ह्यूमन फोर्सेज, ऐसा समझ. अब हम पढ़ेंगे रिलीजन एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. कॉन्स्टिट्यूशन में रिलीजन का क्या रोल है. ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है इन इट्स प्रीएम्बल, वहाँ पे डिक्लेयर किया गया है कि इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट, जो इंसर्ट किया गया 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में, एंड नॉट प्रोसेसिंग ऑफ रिलीजन. और यहाँ का कोई ऑफ रिलीजन नहीं है, आया समझ, क्योंकि यहाँ पे सारे रिलीजन पाए जाते हैं. ठीक है, मोर ओवर जो कॉन्स्टिट्यूशन है इट प्रोवाइड्स नंबर ऑफ प्रोविजंस फॉर रिलीजियस फ्रीडम्स इन इंडिया. क्या क्या देखो, आर्टिकल 14 है दैट स्टेट शैल नॉट डिनाई एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज विद द टेरिटरी ऑफ इंडिया. किसी को किसी भी आधार पर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, इक्वली ट्रीट किया जाएगा. और आर्टिकल 15 में क्या लिखा गया है कि स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, एनी ऑफ देम. नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन एनीथिंग. ओके, or no citizen shall on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth, any of them subject to any disability, liability, restrictions. किसी को लाइबिलिटी नहीं दी जाए, किसी को डिसेबिलिटी नहीं दिया जाए, किसी को रिस्ट्रिक्शन नहीं किया जाए, आया समझ. उनको सबको एक्सेस हो सकता है, वो शॉप्स में जा सकते हैं, पब्लिक रेस्टोरेंट्स में जा सकते हैं, होटल्स में जा सकते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, गोरे हो, काले हो, डिफरेंट रेस हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, शूद्रा हो, आया समझ, लड़की हो, लड़का हो, इट डजेंट मैटर. यूज़ ऑफ वेल्स, टैंक्स, बाथिंग आर्ट्स, रोड्स एंड प्लेस ऑफ पब्लिक. ये नहीं कि कोई किसी को बोल सकता है भाई तुम मुसलमान है तो यहाँ से गाड़ी नहीं चला सकते. नो, इट कैन नॉट हैपन. So Article 16 states there shall be equality of opportunity for all citizens in matters relating to employment or appointment of any office under the state, and no citizen shall on grounds. हाँ, कहीं भी जब अपॉइंटमेंट होती है, नौकरी की बात आती है या कहीं पे एडमिशन लेने की बात है, तो ऑन द बेस ऑफ रिलीजन कभी आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो, ऐसा समझो.
फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन कर सकते हो, आए समझ। और आर्टिकल 26 कॉन्फर करते हैं रिलीजियस ग्रुप्स को, आप अपने रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज कर सकते हो, यह फ्रीडम। इसलिए आपने बहुत जगह देखा होगा जो डिफरेंट रिलीजन के स्कूल्स होते हैं, जैसे मुस्लिम स्कूल भी बहुत जगह पाए जाते हैं, मदरसास होते हैं, और बाकी स्कूल्स है दे आर कंट्रोल बाय मुस्लिम इंस्टीट्यूशंस और वक्फ बोर्ड। और जैसे बहुत जगह हिंदू हिंदू के स्कूल्स होते हैं जहाँ पे वो रिलीजियस एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, और वो भी लाइक डिफरेंट संस्थाएं उनको कंट्रोल करती है, समझ। लेकिन उनको खुद से अपने लाइक मैनेजर्स एक्सपेंसेस वगैरह करना होगा, है समझ, प्रॉपर्टी वगैरह एडमिनिस्ट्रेशन करनी होगी, ठीक है। तो या जो बाकी जो वो तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है आर्टिकल्स में। तो उसको लाइक स्टेट फंड्स वगैरह यूज़ नहीं कर सकता है। तो हाँ, दिस इज व्हाट वी हैव रेड इन द पास्ट। तो और लाइक आर्टिकल 30 भी लाइक एक हिसाब से राइट्स देता है माइनॉरिटीज़ को कि एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड स्टेट शुड नॉट in granting aid to education institution discriminate any education institution on ground, हाँ, like no discrimination, it eventually says no discrimination। but अगर आप आज की सिचुएशन देखो, it is entirely opposite, like minority are always under attack in the country, I समझ। the role of religion in the Indian politics pre independence era। जो प्री इंडिपेंडेंस एरा है वहाँ पे क्या था, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने एक कम्युनल डिसहार्मनी क्रिएट की थी, क्योंकि उन्होंने हमेशा पार्टीशन किया, उनको पता था डिवाइड एंड रूल पॉलिसी हम कर सकते हैं, अगर हम हिंदू और मुस्लिम को आपस में लड़ा सकते हैं हमारा काम हो गया, ठीक है। और 70-30 में पहला दंगा हुआ था अहमदाबाद में, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ कम्युनलिज्म इन द कॉलोनियल नॉर्थ इंडिया गेव लिज द सच रिहर्सल्स टुक प्लेस इन द कॉलोनियल रूल, इट लुक्ड टुवर्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम। और उसी उसके बाद ही ये मुस्लिम लीग बनी, क्योंकि दे felt के like minorities and Muslims were under attack here, eventually they decided to like demand for the separate country। और उसके रेस्पॉन्स में अखिल भारत हिंदू महासभा बनी, आया समझ। तो उस हिसाब से जो टेंस रिलेशनशिप थी दो कम्युनिटीज़ में, उससे कांग्रेस कमज़ोर हो गई। और जो ब्रिटिश की पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, उसने ज़्यादा ही वो एक हिसाब से लाइक पानी में पेट्रोल लाइक ट्रीट किया, ठीक है। तो इवेंचुअली आग भड़क गई, ठीक है। और 1946 में रिलीजन एक बर्निंग इशू बन गया, ठीक है। मुस्लिम लीग ने बॉयकॉट किया गवर्नमेंट और कंटिन्यूड देयर डिमांड फॉर अ सेपरेट पाकिस्तान, व्हिच वाज फाइनली ग्रांटेड इन द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। दस जो पार्टीशन ऑफ इंडिया था वहाँ पे वायलेंस, डेथ्स, मास माइग्रेशन, रेफ्यूजी जनरेशन और क्लैशेस बिटवीन टू कम्युनिटीज थी, ऐसा समझो। आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हुआ देखो, द रोल ऑफ रिलीजन इन इंडियन पॉलिटिक्स कैन बी एनालाइज्ड ऑन द फॉलोइंग हेड्स, क्या क्या। देखो, रिलीजन बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना इंडिया का, ये गारंटी करता है सिटीजन को फ्रीडम फ्रॉम देयर एसोसिएशन, द राइट टू रिलीजन ऑफ फ्रीडम, है समझ। दीज टू फ्रीडम्स आर लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज ऑन द बेस ऑफ रिलीजन। जैसे मुस्लिम लीग बनी थी, हिंदू महासभा बनी थी, शिवसेना बनी थी, शिरोमणि अकाली दल बनी थी जो सिख लोगों के लिए बनी थी, एंड हैव बीन प्लेइंग वाइड रोल इन द पॉलिटिकल सिस्टम। देखो, रिलीजन एंड वोटिंग बिहेवियर, आपको पता है वोटिंग बिहेवियर भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है रिलीजन को। जैसे religion plays a significant role in order to know the behavior of the votes. Religion always acts as an important factor of the people's choice of candidates in the elections. जैसे केरला कम्युनिस्ट always use religion factor to gain majority of the state legislature. जैसे वो बोलते हैं कि vote for पंथ और vote for fighting the enemies of पंथ और unite for pantheistic unity। तो हमेशा लाइक ये वाले स्लोगन्स पंजाब इलेक्शंस में यूज़ होते हैं, या कहीं भी आप देखो तो लाइक अभी लाइक पोलराइजेशन जैसे बीजेपी करता है, दे जनरली लाइक वो द हिंदू वोटर्स, बट कांग्रेस ट्राइज टू मेंटेन इट्स सेक्युलर इमेज, ठीक है। तो हाँ, इट्स ऑलवेज इन द पॉलिटिकल प्रोसेस ऑफ इंडिया। तो रिलीजन हैज इट्स ओन सिग्निफिकेंट प्लेस इन इंडियन इलेक्शंस, स्पेशली राइट फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन एंड लीडरशिप रिक्रूटमेंट। तो उसमें क्या होता है, हाँ, जो रिलीजन है लाइक इट कंसिडर्स द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शन। जैसे आपको पता है जहाँ पे लाइक मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन या रिलीजन डिफरेंट होगा, तो वहाँ पे उसी हिसाब से कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाता है। तो जैसे आपको पता है जो लाइक राम जन्मभूमि वर्सेस बाबरी मस्जिद इशू था, तो वो बहुत सिग्निफिकेंट इशू बना था 1989 और 1991 तक भी, ठीक है। उसको तो अभी भी पोलिटिसाइज कर रहे थे, अभी जब रिसेंटली बीजेपी ने मंदिर बनाया तो इवेंचुअली वो हार गई, ठीक है। तो रिलीजन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ वोटिंग बिहेवियर विच इन्फ्लुएंस द फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट। सो कभी कभार हम बोलते हैं भाई ये मुस्लिम मिनिस्टर है, ये हिंदू मिनिस्टर है, तो हमेशा लाइक रिलीजन का रोल रहता है, ऐसा समझ। यहाँ हम बोलते हैं भाई ये हिंदू मिनिस्टर है, तो मोस्ट ये तो हिंदू हिंदू को फेवर करता है, तो भाई इट इज़ ऑलवेज देयर। रिलीजियस माइनॉरिटीज एंड पॉलिसीज ऑफ अपीजमेंट, देखो पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ इंडिया उन्होंने अपना वोट बैंक डेवलप किया है अमंग रिलीजियस माइनॉरिटी ग्रुप्स भी ऑल्सो।
तो वो एक हिसाब से अपीजमेंट करती है रिलीजियस माइनॉरिटीज़ की, उनको लाइक रिलीजियस फंडामेंटलिज्म को एनकरेज करती है। जैसे पॉलिटिकल लीडर्स हैव एस्टैब्लिश गुड कनेक्शन विद अदर रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस। जैसे हम अगर यहाँ पे यूपी में बात करें तो इस टाइम मुझे लगता है मुस्लिम मेजोरिटी किसको वोट की है, उन्होंने एसपी को वोट किया, समाजवादी पार्टी को, जो इन अलाइंस विद थी कांग्रेस। तो लाइक दे eventually boycotted BJP because BJP is always like you can say it's it never speaks in the favor of minorities, and minorities are always under attack when it comes to BJP as such. तो हाँ, ये तो भाई ऐसा है। और रिलीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट, तो ये भी एक एक हिसाब से वेटेज देता है रिलीजियस सेक्टर को ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट। जैसे यूनियन में अगर बनी या स्टेट में भी बनी, तो कभी कभार हम बोलते हैं कि भाई ये अगर इस कम्युनिटी का मिनिस्टर होगा इसको बहुत अच्छा पोर्टफोलियो मिलना चाहिए, आया समझ। तो इसीलिए कभी कभार हम बोलते हैं यार इस रिलीजन का बंदा अगर किसी हाई ऑफिस में होगा तो उससे एक हिसाब से मतलब हम फिर उन रिलीजन के लोगों को एक हिसाब से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, आया समझ। तो ऐसा ही चलता है और ऐसा भी चलता रहेगा, ठीक है। रिलीजियस इंटरेस्ट ग्रुप्स जो होते हैं वो एक हिसाब से सिग्निफिकेंट रोल करते हैं इंडियन पॉलिटिक्स में। जैसे आर्य समाज बना था, जमात इस्लाम बना था, सिख इंटेलेक्चुअल फोरम बना था, सिख स्टूडेंट फेडरेशन, रिलीजियस मैथ्स एंटी काउस्लॉटर मूवमेंट, ब्राह्मण समाज, ये बहुत एक्टिव इंटरेस्ट और प्रेशर ग्रुप्स होते हैं जो एक हिसाब से मतलब इनका डायरेक्ट रोल नहीं होता पॉलिटिकल प्रोसेस में, लेकिन ये बाहर से प्रेशर देते रहते हैं जो रूलिंग सरकार है या पॉलिटिकल प्रोसेस होता है, समझ। कभी कभार ये मिसयूज़ करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपने सेल्फिश इंटरेस्ट गेन करने के लिए, आया समझ। तो बट पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, इनको यूज़ करते टू स्ट्रेंथ देयर सपोर्ट सम इंटरेस्ट ग्रुप्स एज फॉर सवरेज एंड फंडामेंटलिज्म दे आर हार्मफुल फॉर सिटीजन। हाँ, देखो जो रिलीजियस फंडामेंटलिज्म है ना, आपने मतलब बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जहाँ पे बहुत रिलीजियस डिफरेंट लाइक लोग जो होते हैं लाइक एसोसिएटेड टू डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, दे ऑलवेज लाइक give give controversial statements, and they threat or they use uh, vicious language against people of a different community. So but it is eventually of harmful to the secular force and national integration of India, ठीक है। देखो आप रिलीजियस फंडामेंटलिज्म एंड टेररिज्म देखो, और हमेशा कभी देखा जाता है व्हेन यू आर लाइक व्हेन यू बिलीव इन रिलीजियस फंडामेंटलिज्म एंड लाइक इट इज़ ऑलवेज, हम बोले जाते हैं कि लाइक इट ऑलवेज लीड्स टू टेररिज्म, ठीक है। क्योंकि लाइक व्हेन यू मतलब हम we can always debate about the moderates and extremists, and they've been there for like since the British rule. So eventually we say like we can say like it has a unhealthy and harmful pressures on Indian politics. Like it's not like terrorism, not just like you can like attack somebody with your guns and weapons. Terrorism also if you threat a people of a different community, like if you don't let them like like do whatever their religion permits, अगर आपको किसी को जो भी उसका रिलीजन में अलाउड है आप उसको वो करने नहीं दोगे, तो उसको थ्रेट करोगे, उसको सप्रेस करोगे, तो वो भी एक टेररिज्म है, ठीक है। एंड दैट इज मुझे लगता है दैट इज द अगलीस्ट फॉर्म ऑफ टेररिज्म। देखो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ देयर डिमांड्स, देयर आर नंबर ऑफ मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन व्हिच ट्राई टू प्रोटेक्ट मुस्लिम इंटरेस्ट लाइक जमात उल उलमा, दीनी इल्मा, मजलिस अल मुशरा, द अंजुमन तबलीग और तो सो जैसे वो एक हिसाब से दे फाइट फॉर द रिजर्वेशंस ऑफ मुस्लिम्स, वो कहते हैं कि इनको रिजर्वेशन दो जहाँ पे लाइक वो माइनॉरिटीज़ में है, ठीक है। तो लेकिन देयर ऑलवेज बीन अ राइज ऑफ हिंदू नेशनलिज्म। जैसे वीर सावरकर ने एक पैम्फलेट जारी किया था टाइटल हिंदुत्वा, हु इज़ अ हिंदू। ही गेव द लाइक उसने बोला कि एक हिंदू राष्ट्र इस्टेब्लिश करो ताकि हम हिंदूज़ को प्रोटेक्ट करें और हिंदी कल्चर को रिवाइव करें, ठीक है। तो वीर सावरकर था, ही इज़ द लाइक मेन पर्सन हु गेव द टाइटल और हु गेव द टर्म हिंदुत्व, ठीक है। रिलीजन इन पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या है, देखो रिलीजन इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, और सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ रिलीजन को क्रिएट लाइक एक हिसाब से इन्फ्लुएंस और कंसोलिडेट किया जाता है वोट बैंक्स को, ठीक है। कांग्रेस ने कंसेप्ट ऑफ राम राज्य बोला था 1980s में, तो उसी टाइम फिर भिंडरा वाला आया। उसके बाद जब उसने बोला कि खालिस्तान खालिस्तान क्रिएट होना चाहिए, उसके बाद बीजेपी ने रिलीजियस कार्ड प्ले किया 1989 और 1991 में। उसके बाद बीजेपी ने एनडीए बनाई, उसके बाद 1991 में उसकी मैसिव लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई। तो मतलब ये चलता रहता है। रिलीजन इज द रियलिटी ऑफ द इंडियन पॉलिटिक्स एंड indispensable factor of Indian politics. It can neither be encoded nor overlooked. हम इसको ना ही नज़रअंदाज कर सकते हैं ना ही हम इसको इनकार कर सकते। इसीलिए लाइक बाय अडॉप्टिंग सेकुलरिज्म एज द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन, लाइक हार्मफुल और नेगेटिव रोल ऑफ रिलीजन को हम रिप्लेस कर सकते हैं पॉजिटिव और हेल्दी रोल से, ठीक है। लेकिन इवेंचुअली वो नहीं होता है अगर हम इन ऑन ग्राउंड सिचुएशन देखें, ठीक है। तो वे डन विद 22 ऑल्सो।
तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन होगा रोल ऑफ रिलीजन इन द इंडियन पॉलिटिक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। सब कुछ लिखना है और इसमें अगर आपका लाइक करंट इन्फॉर्मेशन से आपको लिंक अप करना है, जो भी आपको लगती है कि करंट इन्फॉर्मेशन जो बहुत वाइटल है, तो वो आप इसमें ये कर सकते हो। देखो उससे क्या होगा, आपका आंसर बहुत डिफरेंट बनेगा बाकियों से। देखो ये किताब सिर्फ आपके पास नहीं है, जितने भी लोग पढ़ रहे हो उन सब के पास है, तो आपका आंसर कैसे डिफरेंट बनेगा जब आप उसको डिफरेंटली फ्रेम करोगे, ऐसा समझ। तो वो कैसे हो सकता है, जब आप कॉन्स्टेंटली करंट अफेयर्स पढ़ोगे, डेली न्यूज़ पढ़ोगे, अपने आप को लाइक ये एक्टिव रखोगे टू लाइक इन द न्यूज़ क्या क्या हो रहा है, एंड देन यू कैन इवेंचुअली इंटीग्रेट इट इन योर आंसर्स, एंड देन योर आंसर विल रियली बी गुड एंड इट विल फेच गुड मार्क्स, ठीक है। तो इतनी मेहनत तो आप कर ही सकते हो, ठीक है। तो ऐसे ऐसे लिखने होते हैं क्वेश्चंस। तो उसके बाद हाँ, ये आपका क्वेश्चन है, रोल ऑफ किधर है, रोल ऑफ रिलीजन इन द इंडियन पॉलिटिक्स, ठीक है। उसके बाद मूविंग ऑन टू द लास्ट चैप्टर, दैट इज रीजनलिज्म इन इंडिया। देखो रीजनलिज्म एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है इंडियन पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम का। जब भी कोई इंसान अपने टेरिटरी या लैंग्वेज या सोशल हैबिट्स के तई अपनी मोहब्बत दिखाता है ना, इट गिव्स बर्थ टू रीजनलिज्म। इसलिए वो अपने रीजन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और एक हिसाब से नेगेटिव फील करते हैं फॉर द रेस्ट ऑफ द कंट्री। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ, अभी जो नक्सल्स है या जिनको हम मेओस्ट्स कहते हैं, दे वो लाइक दे डिमांड फॉर द सेपरेट स्टेट। वो बोलते हैं हमें एक सेपरेट स्टेट करो, या लाइक जहाँ भी हम रहते हैं आप, आपको हम हमारे साथ कुछ नहीं है, लाइक वी डोंट हैव एनी अफेयर्स विद द इंडियन गवर्नमेंट, आया समझ। तो एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंस कैसे रीजनलिज्म को डिफाइन करता है कि इन अ जनरल वे रीजनलिज्म में बी डिफाइंड एज एन काउंटर मूवमेंट टू एन एनी एग्जैजरेटेड और एग्रेसिव फॉर्म ऑफ सेंट्रलाइजेशन। इट मस्ट नॉट हाउएवर बी कंसिडर्ड सोली फ्रॉम अ पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू और गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। तो लाइक इसको हम ऐसे कंसिडर नहीं करते कि ये एक पॉलिटिकल पॉइंट से या एक गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आया है। But regionalist problems arise only when there is a combination of two or more such factors, such as geographical isolation, independent and historical traditionalism, racial, ethnic, or religious peculiarities, and local and economic class interest. तो इट जनरली मीन्स लाइक पावर सेंट्रलाइज है, ठीक है। पावर को डिसेंट्रलाइज नहीं करना है, हम बस हम और हमारा जो एरिया है बस, बाकी कुछ नहीं, बाकी आप बस, हमें आपके साथ कुछ नहीं है। तो रीजनलिज्म जो है इट इज़ ऑलवेज एसोसिएटेड विद द रीजन। जैसे पंजाबीज वी कैन से like Punjabis have been, yeah, like Sikhs in particular have been demanding for a different like country they term as Khalistan. So it grows when people inhabiting a particular region inside a nation state feel that they are bound together but are different from stronger than the bonds which link them together. उनको लगता है अगर हम आपस में अच्छे से बन रहे हैं, like we think that we are bound together by ties, and like they are more stronger than the other sections of the people living outside the region, like we feel out of place, उनको लगता है we feel out of place. In other words, regionalism is the tendency which makes the people feel that their interests like political, social, economic and culture are different and separate from similar interests of people outside the region. उनको लगता है कि जो हमारे economic and cultural differences है वो बहुत separate है उन लोगों से जो हमसे बाहर रहते हैं, ठीक है। तो regionalism fosters among the people of sense of being a distinct territorial community with its own life and interest, ठीक है। और उनसे इनकलकेट क्या होता है कि desiring and or organizing themselves into a distinct political unit for the protection and promotion of the interest, आया समझ। तो एस्पेक्ट्स ऑफ रीजनलिज्म क्या है, दो एस्पेक्ट है, एक तो सेंट्रीफ्यूगल टेंडेंसी और इंटीग्रेटिव फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल टेंडेंसी क्या है, ये एक हिसाब से अपोज करती है लॉयल्टी ऑफ द नेशनल स्टेट विद नैरो लॉयल्टी टू रिलीजन। ये बोलते हैं भाई वी आर नॉट लॉयल टू द नेशनल स्टेट बट वी आर लॉयल टू आवर रीजन, आया समझ, जहाँ हम रहते हैं। इट में एम एट स्क्योरिंग द रीजन अ ग्रेटर मेजर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी टू इट्स मिडिल फॉर्म वेयर इट बिकम्स अ नेगेशन ऑफ नेशनल एग्रीमेंट, ठीक है। तो वो बोलते हैं भाई हमें एक हिसाब से सॉवरेन स्टेट दे दो, ठीक है। या कभी कभार वो बोलते हैं लाइक वी मेक श्योर कि लाइक यहाँ पे ऑटोनॉमी होनी चाहिए, लाइक पीपल शुड बी गिवन देयर लाइक फ्रीडम वट एवर दे आर लाइक fighting for, I समझ, because they feel like we have loyalty more towards the region but not towards the nation. इंटीग्रेटिव फोर्स क्या है, देखो रीजनलिज्म एक इंटीग्रेटिव फोर्स है, क्यों, वेर फॉस्टरिंग लॉयल्टी टू द रीजन इट अपोजेस सब रीजनल टेंडेंसीज लाइक कास्टिज्म, कम्युनलिज्म एंड लॉयल्टी टू अदर नैरो आइडेंटिटीज विद द रीजन। लाइक फिर एक हिसाब देखो फोस्टर करता है लॉयल्टी ऑफ द रीजन, बट ये जो बाकी सब रीजनल टेंडेंसी है कास्टिज्म, कम्युनलिज्म, लॉयल्टी, उनको सप्रेस करता है, क्योंकि इवेंचुअली वो उसके लिए लाइक वो डिफरेंट नहीं है, वो रीजनलिज्म के लिए डिफरेंट है, बिकॉज लाइक नो मैटर विच कास्ट दे बिलोंग फ्रॉम, नो मैटर विच रिलीजन दे बिलोंग फ्रॉम, दे हैव मोर लव टुवर्ड्स देयर रीजन देन द नेशन, आया समझ। तो फैक्टर्स क्या क्या रिस्पॉन्सिबल है फॉर द राइज ऑफ नेशनल रीजनलिज्म इन इंडिया। देखो ये एक मल्टी डायमेंशन फिनोमेना है,
तो it has been a widespread phenomenon of Indian politics. It denotes as love for a particular region in reference to the country as a whole. It is the biggest obstacle in the process of national integration. कैसे देखो, वर्ल्ड वाइड फिनोमेना देखो, रीजनलिज्म एक पेक्युलर फीचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स नहीं है, ये एक वर्ल्ड वाइड फिनोमेना है, ठीक है। तो जैसे मैं ब्रिटेन में स्काउट्स की एग्जांपल ले, श्रीलंका में तामिल्स की, इराक में कुर्द्स की, तुर्की में भी, और सिंधीज, बलोचीज और पख्तून्स इन पाकिस्तान। तो हमेशा वो बोलते हैं कि लाइक देयर इज ऑलवेज अ फॉर्म ऑफ रीजनलिज्म। जैसे यहाँ पे आप देखो मायोस्ट्स, जिनको नक्सल्स बोलते हैं इन इंडिया। तो इट्स अ वर्ल्ड वाइड फिनोमेना, ये सिर्फ इंडियन पॉलिटिक्स का एक मेजर इशू नहीं है। तो इंडिया में कैसे इन्फ्लुएंस होता है, वर्ल्ड वाइड फिनोमेना है। देखो, लिंग्विस्टिक फैक्टर भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे आपको पता है, इंडिया इज़ अ मल्टी एथनिक, मल्टी मल्टी लिंग्विस्टिक कंट्री। तो कल्चरल माइनॉरिटीज़ को एक फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी होती है। उनको लगता है कि हम अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाएंगे पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली एंड सोशली। तो वो एक हिसाब के लीड टुवर्ड्स करता है इरोजन ऑफ द कल्चरल आइडेंटिटी दैट इज बिफोर इंडिपेंडेंस। इन ऑर्डर टू इन द मास सपोर्ट, कांग्रेस ने क्या बोला था, उन्होंने बोला था हम लिंग्विस्टिक के बेसिस पे कंट्रीज को, स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करेंगे। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद उन्होंने बोला नहीं भाई ना, ये तो गलत है, हम तो नहीं कर सकते। उसके बाद फिर जब कंटिन्यूस प्रेशर आया फ्रॉम द लिंग्विस्टिक ग्रुप्स, उसके बाद उन्होंने रीऑर्गेनाइजेशन की, और लाइक बहुत सारी स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करना पड़ा ऑन द बेस ऑफ लिंग्विस्टिक्स। तो उससे एक फॉर्मेशन ऑफ रीजनलिज्म हुआ इंडियन पॉलिटिक्स में। जैसे डीएमके की बात करें, जो अभी रूलिंग गवर्नमेंट चला रही है तमिलनाडु में, एडीएमके जो अपोजिशन में है, या तेलंगाना प्रजा समिति ऑफ आंध्र प्रदेश, या गोरखा लीग ऑफ वेस्ट बंगाल। ये तो भाई, ये तो लैंग्वेज पे बनी है, बट इवेंचुअली लाइक इट गिव्स राइज टू रीजनलिज्म। इकोनॉमिक फैक्टर भी बहुत बड़ा फैक्टर है फॉर द राइज ऑफ रीजनलिज्म इन इंडिया। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा, जो तेलंगाना में रीजनलिज्म है, जो आंध्र प्रदेश में, ये तो आप पुरानी बुक है, पता नहीं यार, ये तो अभी भी तेलंगाना है। तेलंगाना इन आंध्र प्रदेश लिखा है इसने। तेलंगाना इज अ डिफरेंट स्टेट एंड विदर्भा इन महाराष्ट्र हैव ट्रेस टू अनइक्वल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हाँ, जो तेलंगाना वाले बोल रहे थे, वो बोले थे लाइक जब हम आंध्र प्रदेश के साथ थे, तो वहाँ पे कंटिन्यूस डेवलपमेंट या इक्वल डेवलपमेंट नहीं होती थी। दैट्स व्हाई दे फाइट, एंड इवेंचुअली ऑन जून 2014 द तेलंगाना स्टेट वाज कार्व्ड आउट ऑफ आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो इकोनॉमिक फैक्टर इज वन ऑफ द मोस्ट like मेन फैक्टर व्हेन इट कम्स टू राइज इन ग्रोथ ऑफ रीजनलिज्म, ठीक है। ट्राइबल फैक्टर भी, मैंने आपको बोला ट्राइबल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि नक्सल्स मेजोरिटी ट्राइबल लोग हैं। तो ट्राइबल फैक्टर इज वन ऑफ द मेन दैट गिव्स बर्थ टू द रीजनलिज्म, ठीक है। क्योंकि लाइक उनको लगता है कि लाइक आवर कल्चर शुड बी प्रिजर्व। जैसे लाइक वो लाइक दे जनरली रिजाइड इन लाइक फॉरेस्ट एरिया एंड रूरल एरियाज, तो इवेंचुअली वो वहाँ पे किसी को आने नहीं देते। आपने बहुत न्यूज़ में देखा होगा कि लाइक अटैक्स होते हैं सीआरपीएफ पे, फैटल अटैक्स होते हैं, और लाइक हमेशा लाइक वहाँ पे डेथ्स होती है सिक्योरिटी पर्सनल्स की या नक्सल्स की भी। तो ये चलता रहेगा, ठीक है। रिलीजियस फैक्टर क्या है, देखो रिलीजियस फैक्टर भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है रीजनलिज्म के लिए, जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया है, ठीक है। जो यहाँ पे हुआ था इंडिपेंडेंस के टाइम, जब इंडिया पाकिस्तान बना था, तो उसके बाद जब सिख लोगों ने लाइक खालिस्तान की डिमांड की थी, दे थॉट कि लाइक सारे सिक्स एक ही कंट्री में रहेंगे। तो अभी भी लाइक इट इज़ स्टिल लाइक प्रेवलेंट है, लाइक वो चीज़ें तो ख़त्म नहीं होगी, इट विल लाइक इवेंचुअली तो चलती रहेंगी। देखो, एथनिक, रिलीजियस एंड रेशियल फैक्टर्स, समटाइम्स एथनिक, रेशियल एंड रिलीजियस फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ रीजनलिज्म। जैसे हिंदू महासभा, शिरोमणि अकाली दल, मुस्लिम लीग, तेलुगु देशम पार्टी, ये तो भाई एथनिक रिलीजियस पार्टीज थी ना, पॉलिटिकल पार्टीज थी, बट दे वर क्रिएटेड ऑन द बेस ऑफ रिलीजन। इकोनॉमिक इम्बैलेंस, जैसे मैंने आपको बोला, कभी कभार इकोनॉमिक इम्बैलेंस होती है, और अंडर डेवलपमेंट, जिससे गरीबी बढ़ती है, बेरोजगारी बढ़ती है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं फॉर द राइज ऑफ रीजनलिज्म। और स्टेट ऑटोनॉमी की बात करें, तो जैसे हम लाइक जब जो लाइक कश्मीर का इशू है, तो यहाँ पे तो बहुत टाइम से लाइक स्ट्रगल चल रही है ना। तो दे लाइक बहुत सारे लोग रहे थे वो, लाइक दे आर ट्राइंग टू लाइक फाइट फॉर द स्टेट ऑटोनॉमी। उनको ऑटोनॉमस लाइक ऑटोनॉमी वहाँ पे दी जाए, ताकि दे कैन डिसाइड देयर ओन फेट। But India considers it an integral part of India. But like it is a dispute between Pakistan and India when it comes to United Nations, ठीक है। तो जैसे इसने यहाँ पे मेंशन किया है, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पंजाब एंड जम्मू कश्मीर, दे लाइक डिमांड फॉर मोर ऑटोनॉमी, ठीक है। देखो, रीजनल पार्टीज़, आपको पता है रीजनल पार्टीज़ भी जब फॉर्म होती है, सो दे आर सेटिस्फाइंग रीजनल एस्पिरेशंस एंड नीड्स, ठीक है। किसी भी टेरिटरी या किसी भी एरिया से जब कोई पार्टी ऑरिजिनेट होती है, इट ओनली गिव्स राइज टू द रीजनलिज्म, आया समझ। तो रीजनल प्रेस, आपको पता है जो लोकल प्रेस होगा, जर्नलिस्ट होते हैं, वो भी एक हिसाब से एनकरेज करते हैं रीजनलिज्म को।
इट इज़ फेल टू मेंटेन बैलेंस बिटवीन रीजनल एस्पिरेशंस एंड नेशनल गोल्स। तो लेकिन वो एक हिसाब से वो गोल्स टिल्ट नहीं होते, वो ऑन द सेम पेज नहीं होते। और पॉलिटिकल लीडर्स भी आपको पता है जो बड़े नेशनल पार्टीज़ के साथ होते हैं तो वो भी एक रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर emergence of regionalism। जैसे political leaders are not satisfied with their original parties, they form new party to express their grievance। जैसे श्री अजय मुखर्जी ने बांग्ला क्रॉसेस बनाई थी, ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस बनाई थी, मुफ्ती मोहम्मद सईद ने पीडीपी बनाई थी। तो हाँ, these are the examples। तो रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है देखो, rise of regionalism in India, the process of modernization and development through the construction of dams, rivers, valley projects, multi-purpose projects, defense industry establishment does not take into consideration concerns of local bureau tribes। देखो कभी कभार आपको पता है लाइक कभी बोलते हैं भाई हमें यहाँ पे कुछ बनाना है तो जंगल काट दो, लेकिन वो उस टाइम फिर लोकल जो ट्राइब्स होती है उनकी एस्पिरेशंस को कंसिडर नहीं किया जाता है। इवेंचुअली फिर उनमें जो गुस्सा होता है, उनमें जो गम और रंज होता है, वो कैसे लाइक एक्सप्रेस करते हैं, रेजिस्ट करके, ठीक है। As a result, the feelings and aspirations of people of particular regions have been hurted। आया समझ? इसमें स्पेलिंग गलत लिखी है। तो देखो अब हम पढ़ेंगे फॉर्म्स ऑफ रीजनलिज्म इन इंडिया। देखो रीजनलिज्म एक बहुत वाइड स्प्रेड फिनोमेना है इंडियन पॉलिटिक्स में बिकॉज ऑफ इट्स नेगेटिव सेंस। इट इज़ मेंट फॉर द लव ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन एज कम्पेयर टू द कंट्री एज अ होल। हम कभी बोलते हैं लाइक आप देशद्रोही हो, तो किसी को लाइक यहाँ पे लेबल करते हैं भाई जब भी वो या आप पाकिस्तान चले जाओ, आप यहाँ चले जाओ। लाइक पेट्रियोटिज्म इज़ अ फीलिंग बट लाइक यू कांट लाइक मतलब आप किसी पे थोप नहीं सकते हो कि लाइक यू हैव टू बी पेट्रियाटिक। आया समझ? तो एक हिसाब से देखो हम रीजनलिज्म ये बोलते हैं कि लाइक इट्स अ ग्रेट हिंड्रेंस इन द प्रोसेस ऑफ नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। जाहिर सी बात है व्हेन लाइक पीपल ऑफ अ डिफरेंट रीजन और अ पर्टिकुलर टेरिटरी आर नॉट हैप्पी एंड दे डोंट अलाइन विद द गोल्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ द सेंटर, इवेंचुअली नेशनल यूनिटी और इंटीग्रिटी पे खतरा होगा। तो डिमांड फॉर सेसेशन फ्रॉम द इंडियन यूनियन से हटना, ठीक है, या सेसीड होना उनके साथ लाइक को लाइक बाहर इंडियन यूनियन से एक हिसाब से वो डिविएट होना, सेपरेट स्टेटहुड ये करना डिमांड, फुल स्टेटहुड डिमांड करना। जैसे अभी रिसेंट न्यूज़ में आया था राजस्थान में कोई ट्राइबल ग्रुप है वो शायद सेपरेट स्टेट डिमांड कर रहे हैं, या मोर एंड मोर ऑटोनॉमी दे दो हमें, या रीजनल ऑटोनॉमी दे दो स्टेट में, या इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स होते हैं, मिलिटेंट रीजनलिज्म होता है, लिंग्विस्टिक रीजनलिज्म होता है। आए समझ? तो जैसे आप बहुत सारे पढ़ सकते हो, जैसे इसने देखो डिमांड फॉर सेशन फ्रॉम इंडियन यूनियन, जैसे आपको पता है सेपरेटिस्ट ग्रुप्स बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, और सेशनिस्ट ग्रुप्स जैसे जम्मू कश्मीर में, मणिपुर में, नागालैंड में, मिजोरम में, त्रिपुरा में, जो नॉर्थ ईस्ट का होल रीजन है ऑलमोस्ट वहाँ पे। तो ये बोलते हैं कि लाइक हमें आप डिफरेंट लाइक एक हिसाब से सेसीड दे दो। सेसेशन मीन्स लाइक we don't want to be the part of India anymore। I suppose we don't want to be the Indian part of the Indian Union anymore। So yeah, these are the different forms of regionalism in India। If you want to read more about them, you can like Google them just to know like more information। ठीक है? तो इस पे आप आपका क्वेश्चन होगा फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ रीजनलिज्म इन इंडिया। आया समझ? कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है फॉर द रीजनलिज्म इन इंडिया, ठीक है? तो ये आप कर लेना अच्छे से। इसमें मगर एक चीज़ आप कर लेना, इसमें आप एग्जाम्पल्स भी दे देना, ठीक है? और दूसरा क्वेश्चन होगा फॉर्म्स ऑफ रीजनलिज्म इन इंडिया, ठीक है? फॉर्म्स ऑफ रीजनलिज्म इन इंडिया ये भी आप खत्म कर दो, तो बस हाँ हो गया। we're done with completing the political science of fifth semester। तो मुझे लगता है इस संडे आपका टेस्ट होगा, ठीक है? हाँ, इस संडे आपका टेस्ट लिया जाएगा, तो देखा जाएगा आप कितने पानी में हो, ठीक है? ओके देन, सी यू टुमारो।